जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, ਅੱਜ 24 ਜਨਵਰੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, 10:14 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਵਾਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਬੁਲਵਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु महाराज जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਛਣ ਛਣ ਦਾ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਆਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਿੱਕੜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਇੰਨਾ ਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਚਮਕਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੰਦਰ, ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਮੰਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਪੀਲੇ ਫਲ ਦਾ, ਤੇ ਪੀਲੀ ਚੀਜ਼, ਪੀਲਾ ਫਰੂਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਭੋਗ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸੀ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਸਤਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਸਵਾਸਤਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਓ, ਸੁਭਾਗਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਸੁਭਾਗਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਚਲੋ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆਪੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਵਾਈ, ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਵੀ ਖਵਾਏ। ਮੈਂ ਪੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਸੋ ਕੇਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੜਾਏ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਚੜਾਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋਤ ਜਗਵਾਈ, ਥਾਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੋ ਆਰਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਰਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਵਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ
ਕਪੂਰ ਤੇ ਲੌਂਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਈ ਤੇ 5 ਦੀਪਦਾਨ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਹਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੂਹ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀਪਕ ਵੀ ਜਗਾ ਕੇ ਆਈ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਦੀਪਕ ਆਪਾਂ ਜਗਾਈਏ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। कहते ना तेरे पिता का वचन कभी भी खाली नहीं जाता। आज मेरा वचन है तेरे घर में धन की कमी नहीं आएगी। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। नंतम नंतम शुकराना, बारंबार शुकराना। बस ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਚਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। 3 ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। तू सुपरस्टार से कम नहीं है। 1% भी भरोसा करती है तो शुक्राना की हाजिरी लगा और गुरु जी के चरणों में अर्पित कर और भगतों को शेयर कर। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हाजिरी लगा के मैं शेयर कर रही हूँ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। तो कहते शुकराना कर बेटा। ब्लेसिंग जरूरतमंद तक पहुंचा। आज शनिवार है। शनिदेव और गुरु जी की संयुक्त कृपा तुझ पर एक बड़ा संकट आज टल चुका है। चुपचाप शुकराना कर, बेफिक्र हो जा और अपना उज्जवल भविष्य बना। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी इन्ना पॉजिटिव मैसेज देने ਲਈ। कहते तेरा शुकराना अजय दर्ज नहीं होया, जल्दी शुकराना कर। तेरे जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। गुरु जी ने तेरा नाम ब्लेसिंग की लिस्ट में लिख दिया। जल्दी मनोकामना पूर्ण होगी। शुकराना कर। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुकराना कर रही हूँ मैं। तुसी करवा रहे हो तो करती पी हाँ। कहती आज शनिवार को अगर तुझे ये संदेश मिला तो समझ जा कोई संजोग नहीं, तेरे ऊपर भारी नजर लगी थी जो आज हटा दी गई। गुरु जी ने तेरे संकटों को काट दिया। तू नहीं जानता तेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा बरसी है। हनुमान जी ने तेरी रक्षा की है। शनि देव ने बांधा हटाई है। तू आज माध्यम बना है किसी और के जीवन में उजाला लाने का। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। बहुत बहुत शुकराना। तो अनंतम अनंतम शुकराना इन्ना सोहना पॉजिटिव मैसेज देने ਲਈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ शुकराना। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਲ ਪਲ ਛਾਂ ਛਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕਲੋਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹਜੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਲੋਕ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਮੰਦਰ ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੋ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਰੋਗ ਹਟਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਗ ਵੀ ਜੋ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ, ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਜੇ। ਤੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ। ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਰੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਰਗਾ ਮਈਆ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਨਰਾਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਨਰਾਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ 5ਵਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ 9ਵੀਂ ਤਿਥੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਸ਼ਟਮੀ ਜਾਂ ਨੌਮੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਲਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਵਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਨੌਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਪ ਲਈਏ। ਹਜੇ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੌਮੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਨੌਮੀ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੌਮੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਰਾਤੇ ਹਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 21 ਵਾਰੀ ਜਪ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਮੰਤਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਓਮ ਜਯੰਤੀ ਮੰਗਲਾ ਕਾਲੀ ਭੱਦਰ ਕਾਲੀ ਕਪਾਲਿਨੀ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ਮਾ ਸ਼ਿਵਾ ਧਾਤਰੀ ਸਵਾਹਾ ਸਬਦਾ ਨਮੋਸਤੁਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਚ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਗੂਗਲ ਤੇ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ 21 ਵਾਰੀ ਜਪ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। 4 ਕਬੂਤਰ ਵਾਈਟ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗਈ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣ, 4 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਕੱਲ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਗਈ, ਡੱਬਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਆਪੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਲੂੰਗੜੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 7 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੀ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਵੀ ਦੀਪਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਣੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਮੈਂ। ਕਾਲੀ ਦਾਲ, ਤਿਲ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚੜਾਈਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੀਪਦਾਨ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਤੇਲ ਦਾ। ਸੋ ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਲ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸਵਾਰਨਾ, ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਚ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ, ਸੁਣਨ, ਸਮਝਣ। ਬਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਤਸੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को प्यार भरी जय गुरु जी। मैं गुरु जी के चरण कमलों में मंत्र जाप के साथ शुक्राना करना चाहूंगी। गुरु जी स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। सो गुरु जी को शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना तो हमें हर समय ही करना चाहिए, उठते बैठते सोते जागते। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत से प्यार ही इतना करते हैं कि उनका शुक्राना किए बिना हम नहीं रह नहीं सकते। सो गुरु जी का हर पल पल शुक्राना। गुरु जी में का मैसेज है, तेरी परीक्षा लेकर मैं थक गया, कभी तू मेरा शुक्राना करना नहीं भूली। तेरे दुख काट देते हैं, धन की वर्षा होगी, तेरे घर एक नहीं हजारों खुशी आएगी। सूर्य की तरह भाग्य उदय होगा, सब चंगा ही चंगा होगा। सो गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, जो कि आपने हमारे दुखों को हर लिया। आपने हमें बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिए। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। सब पर आप अपने आशीर्वाद बरसाए, सबकी मनोकामना पूरी करें। गुरु जी कभी कभी मैं तुम्हारी जिंदगी से चीजें छीनता नहीं, बस दूर करता हूँ, क्योंकि वो तुम्हें तोड़ देती हैं और तुम देख नहीं पाते। तुम सोचते हो कि प्रार्थना सुनी नहीं गई, पर हर रात तुम्हारी खामोशी सुनता हूँ। तुम्हारा रोना, तुम्हारी थकान, तुम्हारा अकेलापन सब मेरी नजर में दर्ज है। अगर देरी हो रही है तो समझो तो मैं तुम्हारे हिस्से से बेहतर बना रहा हूँ। विश्वास बनाए रखो। मैं देर कर सकता हूँ पर अन्याय नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने हमें अपनी संगत बनाया। आप हमारा अच्छा बुरा सब सोचते हैं। जो हमारे लिए सही नहीं है वो रिश्ते दूर कर देते हैं। इसमें हमारा ही भला होता है। आपसे जुड़कर हमारी सोच भी बदल गई। पहले हमें छोटी छोटी बातों पर भी मन में बहुत गुस्सा आता था, पर अब बहुत फर्क पड़ गया। मन आगे से शांत रहने लगा। बहुत ही नेगेटिविटी थी, पर अब बहुत कम है। गुरु जी सब जाने जान है। वो तो त्रिकालदर्शी है। वो हमारी पल पल की खबर उनको है। कहते हैं ना कि बिन बोलिया सब किसी जानता। जिस कीजिए आगे अरदास। गुरु जी ने जो भी हमारे लिए सोचा होगा वो बेहतरीन ही होगा। वो तो दया के सागर है, बहुत ही कृपालु है। गुरु जी ने इस धरती पर अपनी संगत के लिए किया, किसी ने भी नहीं किया। वह तो एक निराकार सर्वशक्तिमान है। उनका गुणगान तो हम कर ही नहीं सकते। वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। गुरु जी हर श्वास श्वास आपका शुक्राना, हर दुख सुख का शुक्राना, हमारी गलतियों को माफ करने का शुक्राना, हमारे गुनाहों और कष्टों को माफ करने का शुक्राना, हम पर अपनी रहमतें बरसाने का शुक्राना। सत्संग बोलते समय कुछ भी गलत बोल दिया तो गुरु जी माफ करना। संगत जी अगर कुछ भी गलत बोला हो तो माफ करना। मैं मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो मेरा सत्संग रात एंड लीना शेयर करते हैं, गुरु जी उनको भी खूब ब्लेस करना। उनको भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की बख्शना। गुरु जी उन सबको अपना अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता। उनका भी बहुत बहुत शुक्राना हमारे सत्संग शेयर करने का। सो गुरु जी आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। श्वास श्वास नाम चित्ते आवे, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पानी सरबत दा भला। जय गुरु जी।
जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 10 दिन का शुक्राना करने के लिए बोला है। तो संगत जी, आज मेरा इस 4 दिन हो गए। आज 4 दिन का ये शुक्राना सत्संग है संगत जी। आज रविवार है संगत जी। सुबह के 5 बज के संगत जी 5:30 हो या संगत जी सुबह के। गुरु जी मुझे उठाया था संगत जी जल्दी। और संगत जी वो फ़ोन की चार्जिंग खत्म हो गई थी, तो संगत जी मैं थोड़ा लेट हो गई। संगत जी चार्जिंग पे लगाना पड़ गया फ़ोन, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गई। तो इसमें भी गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना तो बहुत सारे आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा शेख, वो भी गुरु जी बुलवाएंगे। तो संगत जी, कल मैं आपको गुरु जी में शादी पे गई थी, तो गुरु जी भी साथ में शादी पे गए थे। इसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना। मेरी बेटियाँ जब भी शादी पे जाती है कभी खुश नहीं होती थी संगत जी। कल जब गुरु जी साथ में गए संगत जी, तो मेरी बेटियाँ, वैसे तो गुरु जी की बेटियाँ खुशी भी हो ही देते हैं संगत जी। कल बेटियाँ बहुत खुश थी, इसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना 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 संगत जी। संगत जी, गुरु जी हमेशा मुझे यही बोलते कि मैं तेरे साथ हूँ। इसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना संगत जी। गुरु जी थोड़ा ऐसे मैसेज भी आते हैं कि मेरे पुत्र को, मेरी बेटी को लेके संगत जी, गुरु जी ऐसे मैसेज भी मुझे आते हैं कि अकाल मृत्यु रंगे तेरे दुश्मन तेरे मुंडे थे पीछे पहने, तो पीछे पड़े हुए थे। तो शुक्र है तू सत्संग सुन। और संगत जी, मैं सुनती तो हूँ, बहुत सारे सत्संग सुने, पर कल रात को मैं सुनते सुनते संगत जी घर आके खाना वाना बनाया संगत जी। अब खाना खाने के बाद मैंने गुरु जी का सत्संग सुन रही थी। फिर मैं थोड़ा लेट गई, लेटते रहते नींद आ गई। अब मुझे पता नहीं मैंने सुना या नहीं सुना, फिर मैं गुरु जी दोबारा सुन लूँगी संगत जी। और गुरु जी सत्संग सुनवा के कष्ट काट देते हैं, इसके लिए गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना 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 संगत जी। गुरु जी का जितना ही शुक्राना करे उतना ही काम है। और गुरु जी मुझे कहते हैं संगत जी, मैं ना काम में जब मैं लग जाती हूँ ना संगत जी, तो मेरे मुंह से शुक्राना नहीं निकल पाता संगत जी। पर वैसे मैं भजन वगैरह सब सुनती हूँ। शुक्राना करना, पता नहीं गुरु जी आप मुझे अपने चरणों में लो। मेरे मन में शुक्राना हर पल बोलती रहो। आशीर्वाद हो गुरु जी, आप ही नहीं देना, आप ही नहीं करवाना है।
हम अपने से कभी कुछ नहीं कर पाते सदगुरु जी। कोई मुझसे गलती होगी तो क्षमा करना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना 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 शुक्राना। और संगत जी गुरु जी आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी कि मेरे हस्बैंड अंकल कमाते नहीं थे संगत जी, पर गुरु जी की इतनी मेरा संगत जी। मेरी बेटियों को भी गुरु जी ने ही पढ़ाया, वो भी बहुत कम पैसों में गुरु जी। अच्छे स्कूल में पढ़ी, कॉलेज भी सस्ता गुरु जी ने ही बनवाया, निकल आला संगत जी। मेरी बड़ी बेटी कॉलेज, सरकारी कॉलेज में पढ़ी है संगत जी। ये सब गुरु जी ने खाना जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, कपड़े दिए पहनने के लिए उसके लिए शुक्राना। गुरु जी ने घर दिया, भले ही छोटा है पर अपना है, गुरु जी का ही है, इसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने तो बहुत मेहर करी है, बहुत। गुरु जी ने मुझे बुरे लोगों से बचाया है, इसके लिए भी गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना संगत जी। संगत जी गुरु जी ने बटरफ्लाई के रूप में भी मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं संगत जी। संगत जी गुरु जी ने बहुत सारी कलरफुल बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए संगत जी, आज भी देते हैं संगत जी। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 संगत जी। हर समय का शुक्राना। और संगत जी गुरु जी की तो मैं सेवा नहीं कर पाती संगत जी, काम में ही लगी रहती हूँ और गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ और अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ, कुल देवी माता से भी माफ़ी मांगती हूँ। और जाने अनजाने कोई किसी का मन दुखा दिया हो उसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। और गुरु जी मुझे अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं संगत जी, इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरु जी ने जो शादी अटेंड करवाई उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरु जी ने बहुत मेहर करी है संगत जी। गुरु जी ने मुझे बीमारी ठीक करी है, उसके लिए भी शुक्राना। मेरी बड़ी बेटी के संगत जी शिष्ट होती ना, PCOD की प्रॉब्लम भी गुरु जी ठीक कर रहे हैं, उसके शिष्ट थी संगत जी। हम जब नए साल पे शायद हम बड़े मंदिर गए थे पिछले साल, इस साल का नहीं, इस साल भी गुरु जी ने हमको बुलाया था, बहुत ब्लेसिंग थी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरी बड़ी बेटी के शिष्य थी संगत जी, उसका हर समय मतलब पेट में दर्द होती थी संगत जी। हमारे पास इतने मतलब पैसे नहीं थे जो MRI करा पाते संगत जी। संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद खाया संगत जी। ऐसा हुआ संगत जी, जब आपको पता ही है कि जब गुरु जी का लंगर प्रसाद होता है सॉरी, तो संगत जी क्षमा करना संगत जी। तो संगत जी इसको संगत जी गुरु जी एक ना जब से सब लंगर कर लेते संगत जी,
उसमें एक लाल मिर्ची बचती है बड़ी वाली। तो संगत जी मेरी बड़ी बेटी सामने वालों को बोलती संगत को कि आप खा लो, कहते नहीं आप खाओ। अब संगत जी उसमें लाल मिर्च होती है, ऐसे ही किसी ने नहीं खाई तो संगत जी उसको वो लाल मिर्च खानी पड़ गई। संगत जी ऐसे ही खा गई। संगत जी अगर गुरु जी ने खिलाई इसके लिए भी गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। गुरु जी के ठीक करने के तरीके भी बहुत ही अलग है। संगत जी वो 2 दिन ना उसको वो मिर्च खा तो ली इसने। संगत जी इसके ना पेट में रोज दर्द होने लगी बहुत ज़्यादा। कहती मम्मी मैंने मिर्च खाई। संगत जी कह रही सामने वालों ने नहीं खाई। तो संगत जी इसके पेट में दर्द होता रहा, रोती रही। तो संगत जी गुरु जी ने इतना थोड़ी हेल्दी मेरी बेटी की ना, तो संगत जी PCOD गुरु जी ने इसका ठीक कर दिया। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था। संगत जी अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। और मुझसे कहने में बोलने में अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। और मैं इसी के साथ अपना गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर ही विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई कहने बोलने में गलती हो गई तो क्षमा करना। गुरु जी राज अंकल जी को भी बहुत ब्लेसिंग देना, बहुत खुशियाँ देना। कभी कोई दुख ना आए ऐसी कृपा करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग करने के लिए आज रविवार है और सुबह के 6:51 हो रहे हैं। तो गुरु बाप का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु बाप की बहुत मेहर है। मैं मंत्र जाप करती हूँ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु बाप का शुक्राना मैं कैसे ही कहूँ, बहुत सारे शुक्राने होते हैं पर कभी कभी मुझे समझ भी नहीं आता। संगत जी गुरुपा ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे हैं, पैरालिसिस से जुड़े सत्संग, फिर मतलब ऐसा कुछ मुझे होने हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग है कि तेरे हार्ट में ब्लॉकेज। लेकिन मुझे ऐसा लगता है गुरुपा सत्संग सुनवा के सब कुछ ठीक कर दिए हैं। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरे अंकल जी को ना हमेशा जुकाम रहता है,
तो गुरुपा ने इसके लिए सत्संग सुनवाया। कल आंटी जी ने इतनी विस्तार से सुनाया कि उनके पास पैसे भी नहीं थे और गुरुपा ने किस प्रकार उन्हें पैसों से भी मदद की और उनके अंकल जी की नाक की सर्जरी करवाई। और उसका हेडिंग ये था कि पुत्र, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ, समय रहते संभल जा, न समय रहते जान ले। तो वो आंटी कह रही थी कि ये जुकाम उनको हमेशा से रहता था, लेकिन वो सिर्फ ऐसे ही सोचती थी कि कुछ नहीं है, ऐसा ही हल्का है, ठीक हो जाएगा। और ये बढ़ते बढ़ते ऐसा रूप ले लिया कि अंकल जी को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी। उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब दिखाए डॉक्टर से तो उन्हें पता चला कि उनकी नाक के हड्डी या मांसपेशी कहते कुछ बढ़ ही गए हैं, जो बाहर की तरफ आते जा रहे हैं, तो उन्हें सांस लेने में काफी दिक्कत हो रहा है। सॉरी संगत जी। तो फिर तो फिर ओ, आंटी जी जब ऐसा बताई ना, तब मुझे समझ आया। और सारे सत्संग केवल यही थे। और कुछ और उसके शुरू में आंटी जी ने ये भी बताया कि जब हम बड़े मंदिर जाते हैं तो बड़े मंदिर जाके हम वहाँ पर से जितनी जल्दी हो सके निकलने की, बहुत से लोग ऐसी कोशिशें करते हैं और इस वजह से वो मतलब एक दूसरे पे ध्यान नहीं देते कि किसी को चोट लग जाए या कुछ भी, जब ज़्यादा भीड़ होती है तो ऐसा कुछ तो मैंने कभी भी महसूस नहीं किया है बड़े मंदिर में संगत जी। लेकिन आंटी कह रही थी तो मैं सुन रही थी कि क्योंकि शायद ज़्यादा भीड़ जब होते हैं तो मैं नहीं गई हूँ, मुझे नहीं पता है। तो गुरुपा इसके लिए मुझे क्षमा करना, मैं नहीं जानती। लेकिन अगर कोई ऐसा करते हैं तो वो गलत करते हैं, क्योंकि गुरुपा कहते हैं सबके प्रति आपको हाँ दया की भावना रखनी होगी, कि सेवा की भावना रखनी होगी। जब सेवा की भावना आपके अंदर होगी हर एक दूसरे के प्रति, तो आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मुझे इधर बहुत मैसेज भेज रहे हैं कि तेरे ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर बंगाली तांत्रिक क्रिया की जा रही है, मतलब और और उसके द्वारा मतलब कि तुम लोगों का पूरा तरह से सफाया करना चाहते हैं। और फिर अभी तो मुझे ऐसे मैसेज आए कि जिसमें गुरुपा ने कहा तो ये सत्संग सुन और जान ले कि वो कौन कौन से लोग हैं। आज जब मैंने सत्संग सुना, हर एक के बारे में बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। जब मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, उसमें जितने लोग मेरी लाइफ में गुरुपा ने बताए थे, मुझे सारे लोगों के बारे में गुरुपा एक ही सत्संग में मुझे सुना थे। एक तो मेरी जेठ जेठानी, उस पे सासू माँ, ऐसे ही बता रहे थे संगत जी। और फिर जाके आपके सामने वाले पड़ोसी, इधर बहुत आ रहा है ये सत्संग संगत जी, कि सामने वाले पड़ोसी चाहते हैं कि तू अपने हस्बैंड से दूर हो जा, हमेशा बीमार ही रहे, मतलब कुछ ऐसा हो कि मतलब घर तबाह हो। और क्या संगत जी, मैं ऐसे सोच के बहुत आश्चर्य खा रही हूँ कि वो लोग भी ऐसे निकले, क्योंकि उन लोगों से पहले बीच में हमारी बहुत अच्छी बनती थी। और जब से झगड़े हुए संगत जी, तो इस प्रकार की सोच अगर इंसान रखता है अंदर से कि ब्लैक मैजिक कराता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अभी संगत जी मैं शुक्राना कर रही हूँ, अब पक्षियों के बोलने की इतनी आवाज आ रहा है, ऐसा लगता है कि गुरुदेव साक्षात है। और संगत जी, मेरी जोत कल कल ही जली थी और अभी तक जल रही है। गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना कि इसमें दर्शन दे रहे हैं गुरुपा, जोत के रूप में। गुरु सॉरी संगत जी, जोत में गुरुपा के दर्शन हो या ना हो, जोत जल रही हो तो गुरुपा यहाँ पे है। तो गुरुदेव मुझसे कुछ गलत बोला जाए तो मुझे क्षमा करें। संगत जी, मैं चावल चीनी ये सब छोड़ चुकी थी, और जब 51 दिन हो गए ना, तो मैंने फिर से खाना स्टार्ट किया। लेकिन फिर से सत्संग आ रहे हैं कि चावल चीनी ये सब छोड़ने के लिए। तो गुरुबा मुझे क्षमा करना, मुझसे ये छूटता नहीं है बिल्कुल।
मैं चावल जहाँ तक छोड़ भी देती हूँ पर चीनी नहीं छूटती संगत जी। अब गुरुपा किसी तरह भी मेरे शुगर को ठीक करें। गुरुपा तो एक बार मुझे सुनाया कि शुगर ठीक हो गई है, नॉर्मल हो गई है। तो गुरुपा अब आप ही जाने। संगत जी गुरुपा की मेहर इतनी है कि गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनाया, आंटी जी ने कहा कि ब्लैक ब्लैक मैजिक इतनी तगड़ी थी कि उन्हें स्वप्न में 4 कुत्ते मरे और काली जी के दर्शन हुए। तो गुरुपा ने ये समझाने की कोशिश की और बोली उनके बाद हाँ बहुत परेशानी भी हुई उनको। तो 4 कुत्ते के मतलब है कि हम चारों फैमिली मेंबर जो कुत्तों के ऊपर दिखा दिया गया स्वप्न में, माता काली ने हमारी रक्षा करी। इसके लिए लख लख शुक्राना माता, लख लख शुक्राना गुरुदेव। मैं तो जानती हूँ कि काली माँ हो, दुर्गा माँ हो, ये जो भी माता हो, जो भी भगवान हो, जो भी ईश्वर हो, सारे हमारे गुरु में ही हमें दिखते हैं। तो लख लख शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना। आप ही हो जो हर रूप में आकर हमारी रक्षा करते हो और जो कुछ भी हमसे करवाना हो वो करवाते हैं। कल संगत जी हम छत पे थे और ऐसा है कि हम ना मतलब कुछ कुछ खाने के लेके गए थे, फ्रूट्स वगैरह। और उसी समय हाँ एक एक बंदर दिखा मुझे। मेरी बेटी चिल्लाई कि मम्मी देखो वहाँ पे मंकी आया है। तो मैंने उनकी तरफ देखा, वो हनुमान जी की तरह थे बिल्कुल। तो मुझे जब वो इस तरह डरा के बोली कि मुझे लगा कि वो छत पे ही है, तो मैं दौड़ के नीचे आने लगी। जब मैंने देखा कि वो गली में है, तो नीचे रोड पे, तो मैं सोची कि मैं क्यों ही भाग रही हूँ, वो इतनी जल्दी ऊपर थोड़ी आ जाएगा। फिर मैंने उन्हें देखा, वो भी हमारी तरफ ही देख रहे थे। फिर मुझे ध्यान आया कि काश मैं मुझे उसे खाने के लिए दे देती यहीं से, पर मैंने इसे कुछ किया भी नहीं और मैं नीचे आ गई थी डर से। फिर मैंने उसे देखने की कोशिश की कि अब वो होंगे, क्या है कि शनिवार था, पता नहीं हनुमान बाबा कौन सा कष्ट हमारे लेके जा रहे होंगे जो दर्शन दिए। तो गुरुपा इसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैंने ये नोटिस किया संगत जी, जब भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट रहता है ना, तो हनुमान बाबा किसी न किसी रूप में आते हैं। कभी मंगलवार को आते हैं, कभी शनिवार को आते हैं। मैंने हर बार नोटिस किया, इस बार शनिवार को आए तो पता नहीं कौन सी दुख रोग कष्ट हमारे लेके गए हैं। उसके बाद संगत जी शाम को, हाँ शाम को थोड़ा सा हम दोनों हस्बैंड वाइफ में थोड़ी सी कड़वाहट हो ही जाती है। पिछली बात ही कुछ याद आ जाती है और वो मुझसे बोलते ही नहीं है, और फिर मैं कितना ही बोलूँ, ऐसा लगता है कि दीवार से बातें करो, कितना ही बातें करो। तो संगत जी इस प्रकार मैं मन में बहुत कुछ सोच के लग रहा था कि मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, तो गुरु जी करके मैं कितना अच्छा से दिन काट लेती हूँ। और वैसे ने तो मेरे ऊपर कितनी भारी पड़ती, तो गुरबानी सब सुन के, लेकिन लगता है कि कोई तांत्रिक क्रिया वगैरह करवा के सत्संग भी सुनवाते गुरुपा कि तुझे मुझसे भी दूर किया जा रहा, ना ही मेरा मन लगता है ये सब कुछ करने में। जितने पाठ पूजा मैं पहले करती थी वैसा कुछ भी अब नहीं करती हूँ। मैं 1-2 घंटा जरूर बैठती थी सुबह शाम, अब मैं बैठती ही नहीं हूँ किसी टाइम। तो गुरुपा मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्यों मैं आपसे दूर हो रही हूँ। शायद मन मैंने बहुत बोला कि गुरुदेव मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा। तो गुरुपा ही जाने कि क्या चीज है जो मुझे करने का मन ही नहीं करता। आलस बहुत है। हाँ संगत जी ये सारे कुछ कहते हैं कि तेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया करा कर तुझे आलस दिया जा रहा है ताकि तू कुछ ना करे। और वाकई संगत जी इधर मैं उठती हूँ 8 बजे, बिस्तर छोड़ती हूँ। आज आज तो मैं निकल गई हूँ, कितना भी निकल जाऊँ, जल्दी भी उठ जाऊँ, फिर भी मैं लेटी रहती हूँ। और 8 बजे ही बिस्तर छोड़ती हूँ, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ। कभी तो 9 भी बज जाते हैं। ऐसा मैं कभी भी नहीं करती थी पहले, चाहे कितनी भी ठंड पड़े। तो गुरुबा अगले साल ठंड में मैंने कितने सारे अमृत वेला किए थे। इस बार मैं कुछ भी नहीं करी हूँ गुरुपा,
कृपया मुझ पे सहाय हो और मुझसे सब कुछ करवाएं। लेकिन फिर भी आपका लख लख शुक्राना कि आपने कितने बड़े बड़े कष्टों से बचाया है उस दिन में। और गुरुपा ने एक सत्संग प्लस हुआ जिसमें ये था कि ये जान ले कि तेरे बेटे, हाँ तेरे बेटे बहुत परेशान है, वो अंदर से, वो तुझसे कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो बोलता नहीं है। और वो वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो संगत जी, और ये सत्संग सुन तुझे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें कुछ भी वैसा नहीं था संगत जी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मैं गुरुपा से क्या ही कहूँ। गुरुपा मुझे बहुत सारे उपाय वाले सत्संग भी सुनाते हैं कि तू ये क्यों। और मुझे जो सत्संग सुनाया गया आज, उसमें उपाय बताए गए कि अगर तुझे शुगर है तो 2 ग्राम दालचीनी पाउडर मतलब लेके और पानी पी लो, शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो लख लख शुक्राना गुरुपा, मैं ऐसा करूँगी, दालचीनी का पाउडर रखूँगी तब। गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। और फिर जाके मेरे पेट बहुत ज़्यादा फूल जा रहा है इधर और गैस बन रही है उसमें। तो गुरुपा ने ये भी सत्संग सुनवाया कि एक चुटकी अजवाइन और एक चुटकी हींग और काला नमक और 1 कप पानी डाल के उसे उबाल कर और फिर उसे पी लो तो पेट का फूला हुआ सही हो जाएगा। और गुरुपा ने जब ये जो भी उपाय आप करते संगत जी, ये जान लीजिए अगर गुरुपा ने बताया तो वाकई इंसान को बहुत रिलीफ मिलता है। मैंने तो किया नहीं है लेकिन, और आंटी जी ने ये भी बताया कि गुरुपा मुझे बारंबार ये काढ़ा के लिए बोलते थे कि तू काढ़ा पी। मैं पी नहीं रही हूँ। तुलसी आज और वो दालचीनी, लौंग, इलायची, इसका काढ़ा गुरुपा ने मुझे कितनी बार बोला। वो इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में जो दर्द है ना जगह जगह, वो सब इसी से ठीक होंगे। तो गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इसे बार बार इग्नोर कर रही हूँ। यहाँ तक कि तुलसी के पत्ते ला के भी मैंने उसे नहीं पिए। यहाँ तक कि वो पत्ते भी सड़ गए। मुझे क्षमा करना गुरुपा, मैंने उसे पॉलीथिन में रखे थे। लेकिन अब मुझे भी लगता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना। एक दिन तो मैंने किया था संगत जी, एक आध दिन ही कर पाती हूँ, उसके बाद मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मन करता है फिर भी नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों। तो गुरु बाप का अनंत कोटि शुक्राना जो आप हमें थामे हुए मेरे परिवार को अपने हाथों बिल्कुल किसी मुसीबत को छूने भी नहीं देते। क्योंकि संगत जी मैंने सत्संग शेयर किया था ना कि मेरे अंकल जी को बाइक से जो एक्सीडेंट हुआ और पूरे आगे का जो पोजीशन होता है बाइक का, उसके लाइट वगैरह सारे बिल्कुल मतलब बहुत जोर का लगा उसमें। क्योंकि वो पूरा रफ्तार में थे और कोई गाड़ी बीच में आ गई और उसमें जाके उन्होंने ठोक दिया पूरा कस के। तो ये देखिए संगत जी, अगर अगर वो जो बंदा आगे बाइक में था अगर उसे भी कुछ होता तो भी हमें तकलीफ होती और खुद इनको भी कुछ होता तो इन्हें भी तकलीफ होती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गुरुबा इसके लिए लख लख शुक्राना। कितने बड़े बड़े मुसीबत से गुरुबा हमें बचाते हैं, हर तरफ से हमें बचाते हैं। और हमें लगता है कि गुरुबा हमारे लिए कर ही क्या रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ कुछ रहे हैं संगत जी। जब हम कोई पाठ पूजा भी नहीं करे तो गुरुबा पता नहीं हमारे कष्ट कैसे काट रहे हैं। हाँ, गुरुबा ने ये भी सुनवाया मुझे कि मतलब गुरुबा जब हम कुछ भी नहीं करते हैं तो गुरुबा को हमारे कष्ट काटने होते हैं तो वो निंदा करवाते हैं। फिर हमारी हर लोग हमारी निंदा करते हैं ना तो हमारे कर्म कटते हैं। तो और हम सोच लेते हैं कि लोग हमारी निंदा करें तो निंदा करवा के भी गुरुबा हमारे बहुत सारे कष्ट काटते हैं। कि एक शब्द है शायद, निंदो निंदो मुझको निंदो, इस तरह कुछ करके था संगत जी। वो आंटी जी मुझे बता, हम शॉर्ट्स में मैंने देखा निंदो निंदो, उसमें बताया कि जब हम
किसी की निंदा करते हैं ना तो उसके हमारे अच्छे कर्म उसके उसके पास चले जाते हैं जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, और उसके बुरे कर्म हमारे में ऐड हो जाते हैं। तो इसीलिए निंदा किसी की भी नहीं करनी चाहिए, निंदा से बचो। कहते हैं निंदा से बचने के लिए आप कुछ भी करें वो सही है। निंदा से बचने के लिए आप अगर झूठ भी बोल दे रहे हैं ना तो वो भी गुरुपा माफ करते हैं कि मुझे कोई काम है मैं जा रही हूँ, अब कह के वहाँ से हट जाए तो गुरुपा इसमें भी आपको माफ़ी देते हैं। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अगले शुक्राने में फिर लौटूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।